of the global literatures. Now, so these are the four terms that I am levels that I am looking at, where authorship, narrative style, language, and themes become significant. Reception, how in the context of the 21st century, how readership and readers' engagement with literary text get impacted by the coming of or the influx of global literatures. How circulation of text, the publishing markets, and the dynamics of the reading industry or the publishing industry affect this circulation, and framework, how I hope I'm audible. Am I still audible? Yes, sir. Now you're being audible. Okay. So the fourth, the institutional framework. When I say institutional framework, I'm referring to how the canon, the syllabi, the curricula, and literary prestige, like the set of awards, etc., how they affect our also part. I'll try to be as brief as possible. The first part I'm looking into the theoretical framework of world literatures. David was this idea of gains in translation. We often talk about lost in translation. What is lost in translation? Like Darshan Sarwan about the losses in translation when we translate, local text, local narratives, local stories, proverbs, etc. The flair of the native flair is lost in that. Often when we look for an English translation, but the gains in translation. So the gains in translation as a concept privileges, challenges the privileging of original language and national boundaries. So the whole idea of the fidelity to the original text, as an idea which often translators have to face. Like there is this Italian saying, translator, traduttore translatore, that translator is a traitor. So that idea is often challenged by the of gains in translation proposed by David Ambush. But what is the gain that becomes our focus? So that text can move beyond national boundaries and and original languages. Franco Moratti adds another dimension to this by proposing a theory of distant reading, suggesting that large-scale literary patterns like genres, themes, and forms circulate globally within a literary world system, not as located within the boundaries of linguistic nationalities. So literary terms, themes, and genres and forms are global, and are a general part of a larger global literary system and are not part of or geographical nationalities. So these theories emphasize for us a relational dynamics of literary influence, showing how texts from different parts of the world can interact with each other and inform each other, both in terms of condensed thematic concerns, but also in terms of formal and structural and stylistics. Now, the second theoretical concept in global literature is post-colonial theory, because I mean, as part of the historical necessity, because the world was, at least for 200 years, predominantly colonized by European powers, particularly the British and the Great British, Empire. And as a consequence of it, our contemporary understanding of literature, particularly in the humanities and social science, are deeply influenced by post-colonial theory. Scholars like Ngugi wa Thiong'o
challenge the dominance of Western literary paradigms and advocate for decolonization, particularly in his book Decolonizing the Mind, advocates for the decolonization of language and narrative form. So post-colonial literature, hence, as we could see, foregrounds themes of identity, resistance, and hybridity, offering alternative worldviews which challenge the Eurocentric Western hegemonic norms in reading literatures. So our understanding of global literature today is highly influenced by these theoretical precepts of the post-colonial theory. The third is translation theories. How translation theories contribute to our understanding of global literatures. Because translation is not merely a linguistic operation, like already references are given by previous speakers, how translation, some of the problems in translation. But translation is also a cultural and political act. So the theorist Lawrence Venuti talks about translators. Translators make a choice, visibility and reception of foreign text. So the texts are chosen by translators due to certain political and cultural concerns. So there's always an attempt to domesticate a text in a literary culture, and then there is a conflict of the foreignization. So these ideas of domestication and foreignization illustrate the complexities of bringing a global literature into contemporary audience. So translation, the theories of translation becomes another major aspect of understanding the interaction between global literature and the contemporary literature. Because, like, for instance, in India, this awards that we receive, our writers, some of our writers received Booker Prize or Man Booker Prize or Man Asia Prize. All these prizes that are there. Best translations, crossword prize, and some of the Booker prizes have been awarded to translations. The latest Booker Prize, I think the last one, was awarded to a translation from an Indian text. Book original in English language. But now certain texts which are written in non-English languages, when they get translated, they even reach awards like Booker Prize, very respected awards. So how did that happen? Like a writer who is not originally writing in English can get a world, level award because a translator makes a choice. And aesthetic choice, also political and because the necessity to introduce the local flavor of narrative into a global market, and that then gets appreciated or awarded and recognized because the aesthetics of the local of the native writer in a contemporary context finds acceptance in global market. Particularly in the academy, but not common that Google's when somebody receives a book prize, and the book prize then becomes or a Nobel Prize then becomes easy for reading. So definitely we'll talk about that in the institutional parts. Some of the geopolitical issues that are there, like forced migration, transnational identities, environmental crisis, and global capitalism. So these are geopolitical and economic and environmental issues facing the 21st century world, and particularly the political conflict, so to say. And writers in a specific context, in the contemporary context of the 21st century, get influenced by these. For instance,
Arundhati Roy's Ministry of Utmost Happiness, or Mohsin Ahmed's Exist Blessed, or the Kite Runners, or Mahmoud Darwish's poems. And so these contemporary writers present a different world than what we used to read maybe in the English novels of the 20th century, or late 20th century. The 21st century gives bigger and more deeper and complicated global problems, and those problems affect the production of literature or writing per se, both in poetry, fiction, and also in drama. The theater has completely transformed in the 21st century as a response to the global. So for global literature, formally, in terms of the textual, formal, structural aspects, influence, the global literary influence lead to genre hybridization, non-linear storytelling, and polyphonic voices, like in the case of Juno Diaz or Chinamonda Ngozi Adichie, etc. So these innovations in form, in structure, also mark a break from a traditional conventional mode of writing that probably the 19th century or the 20th century writers would follow, because the shift in formal aspects of writing has been quicker and faster in the 21st century than in the early 20th century. Also, 100 years moved, we are in an entirely different rapid uh, transformation of literary writing, and that happens because of the direct interaction between global literary context and the individual native language literature context, the readership and reception. So now, readership per se, as I said already, the global events and global recognitions affecting readership, there are also uh, the digital platforms today, like Goodreads, BookTube, Google Reads, and also the copyleft. Like at some point in time, a book had to be printed, it had to be sold in the market, and it often things are not affordable or accessible. But the 21st century global readership is a very vibrant and wider readership because of accessibility. One doesn't have to purchase a book. Books, some of books are available for free reading. For instance, this is this thing called Kindle Unlimited. Amazon has a service. You just have to take, it's just like Netflix. To read a book, to read a novel, you just have to have Amazon Kindle Unlimited subscription, with which one can read infinite number of books during the period of subscription. So you don't have to purchase an ebook. You can just read it. But also there are copyleft, uh, copyleft rebels who ensure that any book that is within the paywall or that is of high cost is accessible for free download. Like there are legal and judicial concerns about it, but recently Delhi High Court ordered the banning of some online portals where free books are available, free ebooks are available. But the point is, such elements ensure that books become accessible, particularly literary works become accessible to a larger readership free of cost. So the economy of reading comes in that aspect. So readership is every day, the new technology influences the readership. Like for instance, we can have mobile apps now with I think there is a disturbance in the network. So are you here? Can you listen me? Okay. So let me wind up. All the things reason is that there is a network problem, and sir has already enlightened us with the different things.
So coming and on this point, I just want to thank you, Dr. Hamid, for that scholarly and captivating session. Your reflections on the counter culture, translation, and regional literary identity offered us Sorry, there was some interruptions. I'll just conclude, in 5 minutes. So, so the global reader today, in any contemporary context, is an entirely different reader from, let's say, 25 years or 50 years back, because every new gadget that comes into our hands also have got apps, for instance. Novels and stories are accessible, so that makes it a different. And translation we already talked about. I'm not getting into that now. The fourth point I would like to talk about is uh, the canon formation and literary institutions. Syllabi making gets affected by the influence of global literatures. Say, for instance, a BA honors English syllabus 100 years back, or 50 years back, 25 years back, could be, if you make a comparison between them, they're completely different from the BA honors English syllabus that we have today. Every global event, every global recognition, every new award impacts our syllabi in the universities, our academic discussions in the universities, our seminars in the universities, because a new recognition, say for instance, a text written in Japan, for instance, or in New Zealand, for instance, or in Ireland, for instance, or in Scandinavia, for instance, that come to us as a stark significant text when there is an award given to them. And when that happens, our understanding of the global literature suddenly gets impacted, influenced, it gets revised. So every contemporary context, the understanding of global literature is also often revised. Say, for instance, uh, writers from the African, Asian, indigenous, and diasporic context, they all come through a certain institutionalization process through awards, through canons, and the syllabus gets changing, syllabus gets revised every time. So now our English syllabus, particularly I teach in the Delhi University, we have 70% non-English writers, only 30% English writers in the entire English syllabi. So the very idea of syllabus making in contemporary literary classrooms get affected when the influence of global, through the influence of global literatures. Say, for instance, one reference I would like to make with the reference to the translation is also that writers like Harukama Murakami, Ohan Pamuk, these are globally acknowledged writers today. Uh, they wouldn't have been there without a global translation market. So when we talk about global literature and its impact on contemporary literature, uh, two things I would like to use as concluding notes. One, the interaction between a global literary scenario or a global literary sphere as an interaction between all literatures of the world or mobility and transacting, that is not completely innocent or neutral entity. There are geopolitical, economic, and cultural hegemony that affect such interactions, because what comes to us is not always uh, an easy, process. It comes through a process, and that process is influenced by elements which are not literary but are political and economic. Uh, the other aspect is, one good thing about the global translation market has been that texts which were not so much available in the global translation market now are available. So the translations are happening to English more than translations are happening from English in the 21st century. But let me ask one question. We read translations of Pamuk or Murakami or other writers. How many Indian authors do we read in our language?
how many Indian authors do we read? How many Tamil, authors do we read? How many Manipuri authors do we read? How many Gujarati authors do we read? Contemporary authors. So our reading of contemporary literature also gets impacted by a global economic market in translation. We read less of the Gujarati or the Malayali or the Bengali or the Manipuri or the Kashmiri or the Punjabi than we read about the Japanese or the Turkish or the Scandinavians or the Irish. So this is one again aspect that we need to look into. So I would conclude there because I think the network is better now. So otherwise I might get again disconnected. If there are questions, definitely I can take. Thank you so much for having me on board, and definitely sorry for the network No, sir, it's my trouble pleasure that you are that here I have. and still you're providing your lecture Thank you and so much. with your insightful thought to the students and to us also. Any question, any by any person, they can ask any question if they want to ask from the audience. So coming on I just want to say something to you, sir. Your words have not only illuminated the complexities and richness of cross-cultural literary dialogues, but have also challenged us to think beyond borders, intellectual, linguistic, and that another term in other terms I can say cultural. Your exploration of how literature travels across nations and epochs, shaping and reshaping itself in dialogue and contemporary world has reminded us why we study literature in the first place, to better understand ourselves and each other in all our diversity, as you said, geographical and shared humanity. I just want to quote your line over here that local has become global and global has become many for society. This is really interesting that we have the access in terms of literature, we have the access to intertextuality, we have the access to other literature, and we can widen our literature with taking references from others. Thank you. And there, I just want to say and invite our respected principal on the stage so that he can deliver his few words to address all the audience. Thank you, sir. The stage is yours, sir. हम्म मुझे बोलना हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ डॉक्टर रजनी बोले हम। Yes, sir. The stage is yours now. हिंदी में We बोले। are waiting for your insightful words to the ठीक है, audience, थैंक sir. यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लिटरेचर ऑन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पर विषय का आयोजित वेबिनार में अपने विद्वतापूर्ण संबोधन से सराबोर करने वाले डॉक्टर DS नेगी जी, डॉक्टर प्रज्ञा राजवंशी जी, डॉक्टर अब्दुल हमीद जी, इस वेबिनार के आयोजक डॉक्टर रजनी बाला इंग्लिश डिपार्टमेंट, डॉक्टर सौरभ सिंह नोडल ऑफ IQAC, अपने सभी विद्वान साथीगण और सभी प्रतिभागी मित्रों, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि यह जो वेबिनार है सफलता की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 2 दिन पहले ही मुझे इसके विषय की जानकारी हुई, इसके टॉपिक की जानकारी हुई, और जब मैंने टॉपिक देखा, उसके बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि इसमें सब्जेक्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। यदि कुछ समय पहले मुझे पता होता तो मैं कई भाषा के साहित्यकारों को इसमें जोड़ता,
उनके विद्वानों को जोड़ता तो विषय की जो सार्थकता है वह और अधिक प्रभावी हो जाती। लेकिन फिलहाल जिन विद्वज्जनों ने अपनी बातें रखी हैं वह इतने अधिक प्रभावशाली ढंग से रखी हैं जिससे मुझे विश्वास है कि सभी प्रतिभागीगण अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मैं तो लाभान्वित हुआ ही। डॉक्टर नेगी जी ने अपनी बात शुरू की विशेषतः फोक लिटरेचर से, लोक साहित्य से। प्रतिभागी लोग सोचते होंगे कि नेगी जी लोक साहित्य की बात कर रहे हैं और उधर ग्लोबल लिटरेचर की बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ग्लोबल वही हो सकता है जिसमें मानकीकरण हो, जिसमें आदर्श हो, जिसमें उच्चता हो, जिसमें यथार्थ का बहुत अच्छा चित्रण किया गया हो। तो जो लोक होता है और जो अच्छा लोक होता है, उस लोक का अच्छा चित्रण होता है, वही ग्लोबल होता है। पूरा व्याख्यान में सुन नहीं पाया, वंचित रह गया। इसकी वीडियो बन रही है, बाद में सुनने का अवसर मिलेगा। दूसरा व्याख्यान डॉक्टर प्रज्ञा राजवंशी जी का रहा और सौभाग्य से यह व्याख्यान मैंने पूरा सुना। मिथ पर केंद्रित रहा। माइथोलॉजी किसी भी भाषा के साहित्य का मूल आधार हुआ करता है। मैडम ने अपने संबोधन में महाभारत, रामायण, कथाओं का, इन सब का उल्लेख किया और मुझे प्रसन्नता हुई कि जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें इस मिथ का कैसा मनोहर, कैसा सुंदर, कैसा रमणीय प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल का भी उन्होंने उल्लेख किया। अभिज्ञान शाकुंतल, रामायण, महाभारत, ये सब ग्लोबल रचनाएं हैं। ये सब विश्व स्तरीय रचनाएं हैं। कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। अनुवाद बहुत जगहों पर पढ़ा जाता है। मुझे याद आया एक प्रसंग कि एक जर्मन विद्वान था गेटे, उसको अभिज्ञान शाकुंतल का उसने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा। उसके बाद उसको पढ़ने में आनंद आने लगा। वो एक ही सेटिंग में पूरा का पूरा नाटक पढ़ गया और पढ़ने के उपरांत वह अपने कमरे में अकेले था, नाचने लगा। इतना सुंदर नाटक। तो कोई भी जब साहित्य होता है, जो साहित्य होता है वह जब ग्लोबलाइज्ड होता है तो उसका आनंद केवल उसी भाषा के लोग नहीं लेते हैं। आज तो हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे ट्रांसलेशन आ गए हैं कि हम उसका आनंद लेते रहते हैं। तो जो मिथ है, मिथ का उपयोग जो रचनाकार होता है वह कई रूपों में लेता है। उसका इम्पैक्ट कई रूपों में होता है। प्लॉट के रूप में होता है, सीधे सीधे उसका कथानक ले लेते हैं। रामायण और महाभारत को हमारे यहाँ तो उपजीव्य ग्रंथ कहा गया था। नरेश मेहता जी हुए, उन्होंने संशय की एक रात लिखी, आत्मजयी लिख दिया,
जो कठोपनिषद की कथा पर आधारित है। नरेंद्र कोहली बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने महाभारत की कथा पर महासमर उपन्यास लिखा, 8 भागों में लिखा, और इतना सुंदर लिखा है, इतना प्रभावशाली है, उसकी भाषा इतनी मंजू है, इतनी प्रवाहमयी है कि उसको पढ़ते ही बनता है। इन मिथकों का उपयोग शिल्प के रूप में भी जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो करता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की बातें आई हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अपनी भाषा को, अपने शिल्प को समृद्ध करने के लिए भी मिथकों का प्रयोग किया जाता है। हम वहां से उपमा लेते हैं, क्योंकि मिथक की कथाएं इतनी लोकप्रिय होती हैं, लोक विश्वास से भरी हुई होती हैं कि जहां कहीं भी एक छोटे से मिथक का भी कभी प्रयोग करता है तो पूरा का पूरा दृश्य, पूरा का पूरा बिंब, पूरा का पूरा इमेज जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है और रचना के सारे तंतु खुल जाते हैं। निराला की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है, नाम से ही स्पष्ट है कि राम की कथा से संबंधित है। राम और रावण का अपराजेय युद्ध चल रहा है। रावण ने इतना भयंकर युद्ध किया कि राम की सेना लगभग परास्त सी हो गई। शाम के समय जब युद्ध विराम होता है तो राम मंत्रणा आयोजित करते हैं। पूरी सभा बैठी हुई है। राम कहते हैं कि लगता है कि हमारी विजय नहीं होगी। क्यों विजय नहीं होगी? क्योंकि रावण को शक्ति आश्रय दे रही है। यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस सेना, उतरी पा महाविजय, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, दो बूंद पुनः ढलके दृगजल। वे रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। हनुमान राम के ठीक सामने बैठे हुए। हनुमान दोनों चरण हनुमान के हथेली में है। उनके जो नेत्र हैं राम के चरणों पर हैं, और राम के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो आंसुओं से भीगी हुई हैं और आंसू के 2 बूंद टपकते हैं और उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। वह चरण राम के हाथ में। हनुमान देखते हैं, कौतूहल से भर जाते हैं। उनको और मोतियों से सजे हुए नेत्र तो शक्ति के हो सकते हैं, राम के तो होंगे नहीं। तो एक आश्चर्यजनक दृष्टि से वह ऊपर की ओर देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि राम रो रहे हैं। राम रो रहे हैं, उनके आराध्य रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि शक्ति ने रावण को अपना आश्रय दे रखा है, रावण का साथ दे रही है। और शक्ति किसकी है? शक्ति शिव की है। शक्ति का निवास कहाँ है? आकाश में है। शिव का निवास कहाँ है? आकाश में है। तो वे सोचते हैं कि हम इस शक्ति का ही विनाश कर देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए वे उस पूरी शक्ति को नष्ट करने के लिए आकाश में उड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं पूरे आकाश को ही निगल लूंगा। और जब बड़ी तीव्र गति से हनुमान को अपनी तरफ आते हुए शिव देखते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं, तो उनको डर लग जाता है कि अब तो महान टकराव हो जाएगा शक्ति का। और जो शिव हैं वह शक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, श्यामा के पदतल भार धरण हरमंद्र स्वर, बोले समरो देव निस्तेज नहीं बानर यह, नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत महावीर, अर्चना राम के मूर्तिमान अक्षय शरीर।
इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। इसमें ध्यान दीजिए, शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, श्यामा के पदतल भार धरण। कैसे शिव बोले शक्ति से? निराला जी किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? श्यामा के पदतल भार धरण। एक बार जो काली थी, जो शक्ति थी, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को निगल जाने के लिए अपना काली का रूप धारण किया था। वह अपने पूर्व स्वरूप में आ जाए, इसलिए शंकर ने उनके क्रोध को दूर करने के लिए बाल रूप में उनके मार्ग में आ गए। श्यामा का पैर उनके ऊपर पड़ा, वह आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये तो हमारे स्वामी हैं, और पुनः अपने स्वरूप में आ गई। तो एक बार जो शक्ति थी वह सबको नष्ट करने वाली थी, ऐसे शक्ति को शंकर ने संबोधित किया। आज पुनः दो शक्तियों का टकराव हो रहा है, इसलिए इस बिंब का प्रयोग किया, इस मिथक का प्रयोग किया। तो जैसे ही कवि ऐसे मिथकों का प्रयोग करता है, पूरा का पूरा दृश्य उसके सामने उपस्थित हो जाता है, और कविता का जो मंतव्य होता है वह पढ़ने वाले के सामने स्पष्ट हो जाता है। तो मिथक का तो यह तेज होता है, मिथक का तो यह गुण होता है, मिथक की तो यह विशेषता होती है। तो मिथकीय जो कविता होती है वह बहुत ही आस्वाद्य होती है और सहृदय पाठकों तक बहुत ही अभिगमित हो जाती है। जो तीसरा व्याख्यान हुआ वह मैं पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल हमीद जी ने अपने व्याख्यान का प्रारंभ जर्मन राइटर से शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने विश्व के जो प्रमुख रचनाकार थे उनको उन्होंने अपने व्याख्यान में शामिल किया। कुल मिलाकर जो यह हमारी वेबिनार रहा आज का, वह वेबिनार मुझे लगता है कि वह बहुत सफल रहा और बहुत अच्छा रहा और बहुत ही उपयोगी रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक बड़े समीक्षक हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तब उन्होंने शुरुआत में लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास होता है। तो जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं हर समाज में बदलती रहती हैं, चाहे पहले का समाज रहा हो चाहे आज का सामयिक समाज रहा हो। और जो हमारा साहित्य है वह इन्हीं से अभिप्रेत रहता है, इन्हीं से प्रभावित होता है, इन्हीं से अपने प्लाट लेता है, इन्हीं से प्रभावित होता है और इन्हीं को अपने साहित्य के माध्यम से प्रभावित करता है। साहित्य को तो मिरर कहा गया है, मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा गया है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। समाज में जैसा होता है वैसा ही दिखता है। तो पहले का समाज ऐसा था, जो हमारा ग्लोबल समाज था, उसमें आज जैसी संचार की स्थितियां नहीं थी। इसलिए जो परिवर्तन होते थे समाज में, एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हुए लंबा समय लग जाता था। तो जो हमारा साहित्य होता था, जो रचा जाता था, वह भी एक दूसरी भाषा के साहित्य को प्रभावित करने में बड़ा लंबा समय लेता था। इसलिए आपने गौर किया होगा, आपने ये अनुभव किया होगा कि एक विशेष, जो पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में विभाजन किया, तो जो पहले का कालखंड होता था 300 वर्षों तक चलता था, 400 वर्षों तक चलता था, और आज समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। आज कहीं किसी भी जगह पर कुछ होता है और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके उसको देख लेते हैं। अभी परसों की घटना देख लीजिए, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, इतना सब कुछ हो गया। नेपाल यहाँ नहीं है, नेपाल हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमने उसको देखा
कल की घटना देख लीजिए, फ्रांस में एक घटना घटी, वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां हुई। तो आज जो इस तरह की स्थितियां हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उससे जो पूरी दुनिया है वह तुरंत प्रभावित भी होती है और उसको जो रचनाकार हैं अपनी रचनाओं का आधार भी बनाते हैं। तो यह सब अधुनातन तकनीक है उसके कारण संभव हुआ है। उसके कारण आज जो दुनिया है वह पूरे परिवार सी हो गई है। हमारे यहाँ संस्कृत में तो पहले से ये कॉन्सेप्ट था, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। कहीं युद्ध लड़े जा रहे हैं, कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं कोई ग्लोबल नेता कोई टिप्पणी कर रहा है, हम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, इसलिए इनसे प्रभावित होना साहित्यकार का, पूरी जनता का सहज है, स्वाभाविक है। हम जब ग्लोबल साहित्य की बात करते हैं और बड़ी रचनाओं की बात करते हैं, तो बड़ी रचनाएं बाद के रचनाकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर ले जाती हैं। जो रचनाकार होता है वह तो त्रिकालदर्शी होता है, वह भूतकाल को जान चुका होता है, पढ़ चुका होता है और वर्तमान पर चल रहा होता है, और जो भविष्य होता है उसकी वह कल्पना कर लेता है, इमेजिनेशन कर लेता है। इसलिए संस्कृत में कवि को कहा गया है कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि मनीषी है, कवि परिभू है, कवि स्वयंभू है। लेकिन जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या हम वैसे का वैसा ले लेते हैं? जैसे रामचरितमानस की रचना जब तुलसीदास जी ने की तो बालकांड में उन्होंने सबसे पहले लिख दिया नाना पुराण निगम। हमने अपना प्लॉट कहाँ से लिया है, अपनी कथा कहाँ से ली है? नाना पुराण, अनेक पुराणों से ली है। जहाँ जहाँ पुराण कथा मिली पुराणों में, वहां से हमने कथा का चयन किया। निगमागम, निगम से लिया, वेदों से लिया। आगम, अपने शास्त्रों से लिया। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तो कुछ और भी है इसमें। कुछ और क्या है? कवि की कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन है। और बिना इमेजिनेशन के, बिना कल्पना शक्ति के कुछ काम नहीं चलता है। कल्पना का मतलब मनगढ़ंत चीजें नहीं होती। कल्पना का मतलब होता है प्रतिभा, जिसमें कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी, जिसमें सोचने की शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतना ही सफल रचनाकार होगा। तो जो रचनाकार होता है वह मधुमक्खी की तरह से होता है। जैसे मधुमक्खी होती है, अपने शहद का चयन करती है, भांत भांत के फूलों पर बैठती है, वहां से उसका रस लेती है। तुलसी के पौधे पर भी बैठ जाती है, वहां से भी रस ले लेती है। गुलाब का पौधा होता है, वहां से भी रस ले लेती है। गेंदे का पौधा होता है, वहां से भी रस ले लेती है। लेकिन जब वो अपना मधु बनाती है तो उसका अपना मधु होता है। इसी तरह से जो रचनाकार होता है वह जगह जगह से प्रभावित होता है, जगह जगह से तथ्यों को लेता है, जगह जगह से अपने कथावस्तु का चयन करता है, लेकिन वह उसका अपना होता है। तो इस तरह से जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट हम लेते हैं, हम उससे प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते हैं। अब जो रचनाकार होता है उसकी प्रतिभा जैसी होती है, जितनी बड़ी होती है, वह अपने ग्रंथ को वैसे ही बड़ा बना लेता है। जो प्रभाव की बात है, तो प्रभाव की का जो अध्ययन है वो हम अपने साहित्य में पहले से ही करते रहे। तुलनात्मक साहित्य एक अलग से स्ट्रीम ही बन गई। कालिदास की जब हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब हम सूरदास की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया।
तो जब हम रचनाओं का अध्ययन करते हैं और कोई समीक्षक जब उसका अध्ययन करता है, जब कोई पाठक उसका अध्ययन करता है, तो वह चारों तरफ देखता है कि कौन कहाँ से प्रभाव ले रहा है, कहाँ से प्रभावित है। और मैं तो चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वजन लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यदि कहीं एक ऐसा प्लेटफार्म हो जिसमें संस्कृत के अध्येता और विद्वान जुड़े, अंग्रेजी के अध्येता और विद्वान जुड़े, हिंदी के अध्येता और विद्वान जुड़े, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। कालिदास को लेकर के, प्रसाद को, महादेवी को, और अंग्रेजी के जो रोमांटिक पोएट्स हैं उनको लेकर के आप ऐसा देखेंगे कि बहुत बड़ी समानताएं आपको इन रोमांटिक कवियों में मिलेंगी। विलियम ब्लेक हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर का पोएट कहा जाता है। अपने यहाँ सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इन दोनों की यदि कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में एक जैसा भाव है। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण किस तरह से कीट्स ने किया है, किस तरह से पीवी शैली ने किया है। प्रसाद की कविता कैसी है, निराला की कविता कैसी है। तो जो इम्पैक्ट है वह इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस सत्र की यह जो वेबिनार हो रहा है, यह पहला वेबिनार है, और यह पहला वेबिनार ही विद्वत मनीषियों से लगा रहा। जुड़ने वालों को भी मैं देख रहा हूँ, एक आध चित्र तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है वो इसमें जुड़ते हैं, उसमें लगते हैं, और जुड़ते ही नहीं है, शुरू से लेकर के आध से अंत तक जो है वह उसमें बने रहते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन जो टॉपिक रखा गया है, वैश्विक साहित्य का समकालीन साहित्य पर प्रभाव, तो जो समकालीन शब्द है, यह समकालीन शब्द हमें बहुत परेशान करता रहा है। समकालीन हम किसको माने, समकालीन की जो सीमा है वहां कहां से हम शुरू करें और कहां पर उसको समाप्त करें। हम जिस समय बोल रहे हैं यह हमारा समकालीन है। आज से 20 वर्ष पहले का जो समय है वह समकालीन है, या 20 साल पहले का जो समय था वह समकालीन है, या 40-50 वर्षों के बीच में जो परिवर्तन आया है वह बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं रहा है, पहले जैसा परिवर्तन रहा है। तो ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3 भाषाओं के साहित्य के इतिहास को हमने पढ़ा, तो उसमें हमको ऐसा लगा कि प्रत्येक भाषा का जो साहित्य के इतिहास का लिखने वाला लेखक है, उसने अपने अपने साहित्य के हिसाब से समकालीनता का जो समय है, समकालीनता की जो समय सीमा है, निर्धारित की है। जैसे हमारे यहाँ देश जब आजाद हुआ तो उस समय देश के लोगों को बड़ी उम्मीद थी आजादी से कि हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा। 10-15 साल के बाद में उसकी जो उम्मीदें थी वो टूटी, उसका मोहभंग हुआ, और जब उसका मोहभंग हुआ तो अनेक तरह के आंदोलन हुए। बंगाल का एक जो आंदोलन है नक्सलवाड़ी का, बहुत प्रसिद्ध रहा और बहुत सारी कविताएं लिखी गई। तो दूसरे तरह की जो सामयिकता है वो आ गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले की सरकारें बदली, दूसरी सरकार आई,
दूसरी सरकार कुछ ही समय चल पाई, पुनः पहले वाली सरकार आ गई। तो जो समय है, जो गतिविधियां हुई, जो घटनाएं हुई, घटनाक्रम हुए, वह परिवर्तित रहे और जो सामयिकता है वह भी प्रभावित रही। तो इस आक्रोश को, जो मोहभंग की स्थिति है, इसको, इन सबको जो सामयिक कविता है उसने अपने साहित्य में स्थान दिया। अब उस समय के जो इतिहासकार थे उनको कोई उचित नाम नहीं सूझ पड़ा, इसलिए जो समकालीन साहित्य है यह कहने की एक परंपरा से चल पड़ी। हम अपील करना चाहेंगे अपने विद्वान साथियों से कि उस समय का जो साहित्य रचा गया है उसके लिए इतिहास लिखें और कोई उपयुक्त सा नाम दें। तो आज का जो समय है, इस समय के जो पीरियड में जो रचनाएं रची जा रही हैं, इनके लिए समकालीनता शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आज की जो यह वेबिनार है, इसके जो विद्वजन रहे हैं, वक्तागण रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ अपने पूरे महाविद्यालय को का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना सुंदर वेबिनार आयोजित किया, और विशेष रूप से जितने भी प्रतिभागी हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस वेबिनार से अवश्य उन्होंने कुछ सीखा होगा और भविष्य में जब हम कोई इस तरह का आयोजन करेंगे तो उसमें सहर्ष जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Principal Sir. I just want to say for your encouraging and insightful words, your constant support enriches our academic environment. Thank you, sir, for your words and to make the comparison and giving the example of contemporary literature and suggestion for the word you want to replace with other words. Thank you, sir, for having such insightful words. Now, on the conclusion, I just want to say and invite our visionary guide, our respected Dr. Saurabh sir from the Department of Education, and he is the Northern of I2AC over here. So I just want that he will express his gratitude to the audience as well as to the speakers. Thank you, sir. Over to you. Okay, thank you, ma'am. आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के सफल आयोजन के उपरांत धन्यवाद ज्ञापित करने का दायित्व आयोजक सचिव डॉक्टर रजनीवाला मैडम द्वारा यह दायित्व मुझे सौंपा गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर संख्या में अभी भी बने हुए हैं, और एक समय ऐसा भी था कि जब पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या थी वो लगभग 58 के आसपास पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आयोजन का भाग है और हमारे वक्ताओं का जो योगदान रहा है वो इस वेबिनार में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर समय तक जो है वो हमारे जो श्रोतागण हैं या वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रतिभागी हैं वो जुड़े रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करने के क्रम में मैं अपने प्रथम वक्ता डॉक्टर DS नेगी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, गोपेश्वर कैंपस, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बड़े व्यस्ततम समय में से बहुत अर्जेंट कॉल पे भी आपने जो है महाविद्यालय और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आपने हमारी अर्जी स्वीकार की। और साथ ही साथ आप विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि आप उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए आप बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और आप उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय संघ की स्थापना में आपका जो अमूल्य योगदान है इसके लिए महाविद्यालय परिवार और मैं उत्तराखंड की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप इस जो है नेक कार्य को हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ही वर्क नहीं बल्कि आप जो है एकेडमिक टास्क भी हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। अपने द्वितीय वक्ता के क्रम में मैं डॉक्टर प्रज्ञा राजवंशी मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, GDC खानपुर,
आपको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने, आमतौर पर लोगों की एक धारणा होती है कि जो वर्चुअल माध्यम होता है, वर्चुअल माध्यम थोड़ा नीरस सा होता है, लेकिन आपने पीपीटी के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस कार्यक्रम को जो है बड़ा जीवंत बनाने का प्रयास किया। आपके, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि मैडम ने बताया था कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है महाविद्यालय का आमंत्रण आपने स्वीकार किया था, तो बिल्कुल मैम, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद देता है और आशा और उम्मीद करता है कि आगे भी आपका इस तरीके से मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा। वक्ताओं के क्रम में मैं मिस्टर अब्दुल हमीद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका मैं विशेष रूप से आग्रह, बहुत विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप ट्रेन में होने के बावजूद भी आप हम लोगों के लिए जो है अपना मतलब तरीके से कहें डिस्टर्ब तो हम लोगों ने आपके साथ किया ही, लेकिन आपने अपने ज्ञान से जो हम लोगों को फलाभूत किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि कभी फिर से जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, या हो सकता है कभी फेस टू फेस मोड पे हम लोग जो है आपको आमंत्रित करें। अभी तो एक तरीके से हमने वर्चुअल माध्यम से ही आपसे जुड़े और वर्चुअल माध्यम में भी आधा अधूरा ही जुड़ पाए। आपकी फोटो के साथ कनेक्टिविटी हम लोगों की नहीं हो पाई क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी। तो निश्चित रूप से सर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक बार पुनः मैं अपने प्राचार्य सर को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में महाविद्यालय निरंतर राष्ट्रीय वेबिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, राष्ट्रीय कार्यशाला निरंतर आयोजित करता जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 8 अक्टूबर को सर के मार्गदर्शन में IKS पे एक राष्ट्रीय जो है सेमिनार कराया, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमने राष्ट्रीय जो है कार्यशाला कराई, और वेबिनार्स में तो हम लोगों ने लगभग पिछले वर्ष में 4-5 सेमिनार हर वर्ष में ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5, 10 की संख्या जो है हमारे पास हो जा रही है। तो सर आपके मार्गदर्शन में ये सब कुछ संभव हो सका है, तो आपको सर पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आयोजक सचिव एवं महाविद्यालय के सभी जो हमारे आयोजक में जो सहभागी रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को बड़ा सफल और बड़ा बेहतर बनाया है। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और हमारे जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर ये मिस्टर सोनू कुमार जी, आप हमारे प्रोग्राम में जो है लगभग शुरू से ही जुड़ते हैं और हर प्रकार के, चाहे वो जैसे भी प्रोग्राम हो वर्चुअल माध्यम से, तो आपका की प्रतिभागिता हम लोग देखते रहते हैं। तो बड़ा आपके लिए विशेष रूप से आग्रह है और सभी प्रतिभागियों को जो है हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप पुनः जो है इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू।